All right. So the group there is one group which has to guard the community, the colony, and there is one other group that is responsible to collect food for the whole colony, for the whole community. They keep on collecting food all the time, and they just do that. Okay, uske alawa ye ab dekhiye social, there's one thing very very important in this passage, and that is the one of the rule of economics, and that is what is that rule? It is division of labor. Division of labor. Labor means that when the work, labor means the work, the jobs, काम. तो क्या होता है कि in a society, a good society is the one where everyone is responsible for his own job. A good society is the one where the job, where the work is divided among the people. जब काम जो है वो लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है, इस तरीके से हर एक काम अच्छे तरीके से परफॉर्म होता है और हर एक काम जो है वो कंप्लीट भी हो जाता है अपने टाइम पे, उस पर कंप्लीट होता है. तो ये डिवीजन ऑफ लेबर इज वन ऑफ द रूल्स, एंड दैट इज, हम कह रहे हैं कि भाई ये एंड्स को ये वाला रूल किसने सिखाया है? तो ये उनको किसी ने पढ़ाया या सिखाया नहीं है, बल्कि एक्चुअली they have inherited it. I told you what do you mean by inherited. Inherited means the thing that you get from your forefathers, the thing that you automatically get from your previous generation. All right, now look at question number 1, and we will do in the same way. हम क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, what do you mean by social insects? ठीक है, social insects आपने बताना है. Look at the passage and tell me the answer. What do you mean by social insects? कौन आंसर बताने वाला है? Raise your hands, all those who know the answer of question number 1. We are on page number 90, English A, page 90, passage number 2. And question number 1, what do you mean by social insects? Zishan Aziz, आप बताएंगे बेटा. Zishan Aziz. Hello. Zishan. Okay, Aisha Mehboob, आप बताइए बेटा. Assalamualaikum teacher. वालेकुम सलाम. Teacher, the answer is some ants are social insects. It means that they live in societies, cooperate with one another, and do only the work assigned to them. Okay, बेटे आंसर नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है. it means से स्टार्ट होता है. जी, यहाँ से शुरू होता है. फर्स्ट लाइन, इट मीन्स दैट दे लिव इन सोसाइटीज, कोऑपरेट विद वन अनदर एंड डू ओनली द वर्क असाइन टू देम. यहाँ तक आंसर नंबर 1. ठीक है, सब लोग मार्क कर लें. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर सम एंट्स कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स? व्हाई? कौन बताएगा? चलिए इब्राहिम आसिफ आप बताइए. इब्राहिम आसिफ. यस. इब्राहिम आसिफ आप बताइए बेटे आंसर नंबर 2. ओके, आलियान आप बताइए. आलियान जिया. अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम सलाम बेटा. Because they go out in search of food in an orderly fashion, marching in lines and common like soldiers. Answer number 2, why are some ants called social insects? They go out in search of food in an orderly fashion, marching in lines and columns like soldiers. Answer number 2 mark कर लें बेटा. ठीक है, सबने मार्क कर लिया है.
Okay. चलें बेटा, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू द एंट्स कोऑपरेट विद वन अनदर? अच्छा, वो कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं? ओके, नूर फातिमा, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। Excuse me teacher, इसका आंसर है different groups of social ants have different jobs to do. They manage their affairs through division of labor. ओके, बेटे इसका आंसर नंबर 3, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है? ये दिस इज लाइन नंबर 1 2 3 4, लाइन नंबर 4, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोशल इंसेक्ट्स हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू। बस यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है? सब लोग इसको मार्क कर लें। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोशल इंसेक्ट्स हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू, दिस इज आंसर नंबर 3, ठीक है? इसके बाद नंबर 4 देखें बेटा, व्हाट प्रिंसिपल डू दे फॉलो व्हाइल डूइंग देयर वर्क? कौन सा रूल वो फॉलो करती हैं जब वो अपना काम कर रही होती? इर्जा, आतिफ, आप बताएंगी बेटे। इर्जा, आतिफ, हेलो इर्जा, बिस्मा फारूक, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम 4 का आंसर है they manage their affairs through division of labor. Some ants guard and protect their community. आपका क्वेश्चन है बेटे, योर क्वेश्चन इज व्हाट प्रिंसिपल डू दे फॉलो व्हाइल डूइंग देयर वर्क? आपने इसका आंसर ये लिखना है, दे मैनेज देयर अफेयर्स थ्रू डिविजन ऑफ लेबर। बस इसका आंसर बस इतना ही है। Okay. Division of labor is Okay, a ma'am. rule. It's the principle that they follow when they do their work. So they manage their affairs through division of labor is answer number 4. ठीक है जी, चलो उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आर द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप कॉल्ड सोल्जर एंट्स? अच्छा, अब देखो क्यों कुछ एक ग्रुप को सोल्जर एंट्स क्यों कहा जाता है? जी बेटे, now I want where are the others? Why are not you all should answer? It's not that difficult. Okay, चलें बेटे, आप बताएं। इर्जा, आतिफ, अब आप बताएंगी आंसर नंबर 5 बेटा। इर्जा, I don't know why some students they are not okay. Maybe I cannot hear them. Okay, चले अर्श असद, आप बताइए। अर्श असद, Assalamu alaikum teacher. वालेकुम सलाम। Why are there some a certain group of ants called the soldier ants? क्यों कहा जाता है उनको? Some ants guard and protect their community. They fight the other insects. They fight the other insects who attack them or raid their colony. Yes. आपने आंसर क्या लिखना है इसका बेटे? Why is certain group of ants called soldier ants? आपने लिखना है some ants guard and protect their community. They fight the other insects who attack them or raid their colony. They are called soldier ants. Answer number 5. Some ants guard and protect their community. They fight the other insects who attack them or raid their colony. Full stop. They are called soldier ants. ठीक है जी, चलो
अब इसके बाद आपके पास है द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ हैव द एंट्स लर्नड द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। उन्होंने कैसे डिवीजन ऑफ लेबर सीखा है, किस तरह से उन्होंने ये सीखा है। अगेन कम बैक टू द ओके। इसका आंसर मुझे बताएंगी मीरब फहीम। मीरब फहीम आप बताइए आंसर नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। टीचर इसका आंसर है द जी social ants have not learned this division of labor, they have inherited it. Inherited it. The social ants have not learned this division of labor, they have inherited it. This is answer number 6. Sab mark Yes, kar lein. The social ants have not learned this division of labor, they have inherited it. ठीक है, चले भाई मीरब फहीम, thank you very much. Okay, now coming back to our new passage, that is passage number 3. It is on page number I guess 91 or 92. ठीक है, this is passage number 3. अच्छा, ये इसके अंदर एक लाइन मैंने ऐड की है, दिस इज फॉर द न्यू एडिशन ऑफ द बुक। जब नया एडिशन हमारा बनेगा, आपके पास जो बुक में है हम उसी को पढ़ लेते हैं फिलहाल। Helen Adams Keller was born on June 27, 1880 in USA. Helen Keller आप लोगों ने सब ने नाम सुना होगा। वो पहली कहाँ पैदा हुई थी? जून 27 को USA में पैदा हुई थी वो। And she was okay in 1880 in USA. She was not born blind and deaf. जब वो पैदा हुई उस वक्त ना तो वो blind थी और ना deaf थी। Blind means जो देख नहीं सकता, और deaf जो सुन नहीं सकता। जब वो पैदा हुई तो she was a normal child, और बिल्कुल उनको कोई ऐसा blind नहीं थी, deaf नहीं थी, कुछ नहीं था। At the age of 19 months, she suffered from typhoid. जब उनकी एज 19 मंथ्स हुई तो उनको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड इज यू नो, वी ऑल नो इट इज अ डिजीज, एक बुखार होता है और ये जो भी बीमारी होती है, वो टाइफाइड हो गया उनको, एंड बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ। और उससे टाइफाइड की वजह से वो ब्लाइंड और डेफ हो गई। इन मार्च 1887 एन सुलेवन began to teach Helen to communicate by spelling words into her hand. अब एन सुलेवन एक टीचर का नाम है, and she was, you know, there are special education के teachers होते हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो उनको पढ़ाने की जो टेक्निक होती है, तरीका होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो मार्च 1887 में, इट मीन्स दैट शी वाज बोर्न इन 1880, तो 87 में, दैट मीन्स व्हेन शी वाज 7 इयर्स ओल्ड, तो एन सुलेवन जो है एक टीचर हैं, उन्होंने हेलन को पढ़ाना शुरू किया। किस तरह से? टू कम्युनिकेट। क्या पढ़ा रही थी वो? ये नहीं पढ़ा रही थी जो अब मैं आपको ये पैसेज पढ़ा रही हूँ तो ऐसा नहीं था। उनको सिखा रही थी कि उन्होंने किस तरह लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे उन्होंने किसी को अपनी बात बतानी है, कैसे दूसरे की बात समझनी है। कम्युनिकेट का मतलब ये होता है कि आप कैसे किसी दूसरे से बात करते हैं या कैसे दूसरे की बात सुनते हैं। बाय स्पेलिंग वर्ड्स इनटू हर हैंड। अब ये किस तरह होगा? वो बोल तो नहीं सकती है, आई मीन शी बोलेगी क्या? मतलब उसने कभी कोई बात सुनी ही नहीं है तो वो बोलेगी क्या? तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके हाथ के ऊपर अपनी उंगली से लिखना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने उनके हाथ के ऊपर, हेलन केलर के हाथ के ऊपर अपनी उंगली से, सो दैट एक उनका जो सेंस था, सेंस ऑफ टच, वो तो था ना। अगर आपके हाथ के ऊपर अपनी उंगली से कोई भी आप कुछ लिखेंगे तो यू कैन फील कि क्या लिखा, ए लिखा जा रहा है या बी, इस तरह से। इस तरह उन्होंने स्पेलिंग लिखने शुरू किए, फिर वर्ड्स लिखने शुरू किए उनके हाथ के ऊपर, और वो सेंस ऑफ टच के जरिए जो है वो समझना शुरू किया उन्होंने। May 1888 Helen started attending the Perkins School for the Blind, and when she was 8 years old, Helen ने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, उनको एक स्कूल में डाल दिया गया, and that school was Perkins School for the Blind. In 1894, she moved to New York to attend the Wright Humason School for the Deaf. और अब 1894 में वो न्यूयॉर्क चली गई, और न्यूयॉर्क में उन्होंने
राइट ह्यूमेसन स्कूल ज्वाइन कर लिया, और वो स्कूल जो है वो स्पेशल बच्चों के लिए था, डेफ बच्चों के लिए, जिनको सुन नहीं सकते उनके लिए स्पेशल स्कूल होता है. In 1904, at the age of 24, when she was 24 years old, she graduated from Radcliffe, becoming the first blind and deaf person to earn a Bachelor of Arts degree. जब she was 24 years old at that time, जब उन्होंने Radcliffe University से graduate किया. Graduate means जो BA जिसको कहा जाता है वो किया, और she was the first blind and deaf person. आज तक कभी भी किसी, ये वो पहली इंसान थी जो ब्लाइंड और डेफ थी, लेकिन उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स इज BA, ठीक है, BA की डिग्री हासिल की. शी रोट The World I Live in 1908, and because she was a learned person ना, पढ़ी लिखी खातून थी, तो वो बुक्स लिखती थी. तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था The World I Live in, कि वो दुनिया जिसमें मैं रहती हूँ. और 1908 में ये बुक उनकी पब्लिश हुई, गिविंग रीडर्स एन इनसाइट इनटू हाउ शी फील्स अबाउट द वर्ल्ड. अब देखिए कि इंसान, हम ये वाली बात नहीं महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान जिसने दुनिया को कभी देखा ही नहीं है, उसको वो, उसके तो एक इमेजिनरी चीज है ना, वो एक इमेजिनरी, उसने कैसी इमेजिनेशन बनाई हुई है अपने जहन में, क्या पिक्चर बनाई हुई है, इमेज बनाया हुआ है दुनिया का, कैसी दिखती होगी, कैसा होगा, नो कलर्स, नथिंग, कुछ नहीं पता. तो एक इमेज ही है, एक बस एक इमेजिनरी वर्ल्ड है उनकी. तो वो उन्होंने जो बुक लिखी थी द वर्ल्ड आई लिव इन, उसके अंदर उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि वो दुनिया के बारे में क्या सोचती हैं, जो उन्होंने इमेज बनाया हुआ दुनिया का वो कैसा है. Her book Out of the Dark was a series of essays on socialism. Socialism is that how should you live with others, how should you live in society. ठीक है. उनकी जो बुक, एक और बुक जो थी आउट ऑफ द डार्क, उसमें एसेस थे, शॉर्ट एसेस, शॉर्ट स्टोरीज आप कह सकते हैं, टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था जो सोशलिज्म के बारे में था. सोशलिज्म के बारे में एसेस थे. सोशलिज्म मीन्स दैट हाउ व्हाट शुड बी द वे, हाउ शुड यू लिव इन अ सोसाइटी. हर ऑटोबायोग्राफी, अच्छा ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, आप बीती जिसको कहा जाता है. और आप बीती क्या होती है, ये होती है कि जो ऐसे फेमस लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी अनयूजुअल चीजें हुई होती हैं, तो वो अपनी जिंदगी की कहानी लिखते हैं, ठीक है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है. हेलन केलर जो है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उस बुक का नाम था माय रिलीजन. माय रिलीजन उनकी ऑटोबायोग्राफी थी. इट मीन्स उनकी अपनी जिंदगी की पूरी कहानी उन्होंने लिखी थी. वॉज पब्लिश्ड इन 1927. 1927 में उनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई थी. In 1961, she suffered a series of strokes and spent the last years of her life at home. और 1961 में उनको सीरीज ऑफ स्ट्रोक्स मीन्स दैट बार बार उनको जैसे अटैक्स हुए हैं. तो उसके बाद उनकी जिंदगी के जो आखिरी साल थे वो उन्हें घर पर ही गुजारने पड़े. शी वॉज नॉट वेल, तो वो इसलिए वो घर पर ही उन्होंने लास्ट अपने साल गुजारे. ऑन September 14, 1964, President Lyndon B. Johnson awarded her the Presidential Medal of Freedom. 1964 में प्रेसिडेंट उस जमाने के जो थे, प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन, उन्होंने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया. ये एक अवार्ड था जो उन्हें दिया गया. In 1965, she was elected to the National Women's Hall of Fame at the New York World's Fair. न्यू यॉर्क वर्ल्ड्स फेयर एक तरह का मेला लगता है हर साल, जिसमें दुनिया के मशहूर तरीन और कामयाब तरीन लोगों को इंक्लूड किया जाता है. और 1965 में उन्हें नेशनल वुमेन्स हॉल ऑफ फेम, जो कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड्स फेयर में ये हुआ था, उसमें उनको इलेक्ट किया गया, उनका नाम वहाँ पे नॉमिनेट किया गया. शी डाइड ऑन जून 1968. शी वॉज अ रिमार्केबल वुमन, रिमार्केबल, unusual, extraordinary, गैर मामूली, वो एक गैर मामूली खातून थी. who portrayed the feelings of deprived people masterfully. वो एक गैर मामूल की टैलेंटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी खातून थी. who portrayed, जिन्होंने दुनिया के सामने लेकर आई the feelings of deprived people. deprived means
जो मायूस लोग होते हैं, वो लोग जो किसी तरीके से कम होते हैं, वो लोग जिनमें कोई कमी होती है, कोई मोहताजी होती है फिजिकली और मेंटली, दोज पीपल हु आर नॉट लाइक द अदर पीपल, या फिजिकली वीक होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, जो भी उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, वो फीलिंग्स उन्होंने बहुत अच्छे, मास्टरफुली मीन्स सक्सेसफुली, बेहतरीन तरीके से, इन द बेस्ट वे, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस तरह के लोगों की फीलिंग्स को पोर्ट्रे किया, लोगों के सामने लेके आई अपनी बुक्स के जरिए. अकॉर्डिंग टू her, we must always remain mindful of the blessings of Almighty Allah. According to her, यानी उनके मुताबिक हमें हमेशा mindful अपने जहन में रखना चाहिए of the blessings of Almighty Allah. Blessings नेमतें, कि उनका ख्याल ये था कि हमें हमेशा अल्लाह ताला की नेमतें जो उसने हमें दी हैं, वो उनको हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए, उन्हें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये सोचें हमारे पास क्या नहीं है. हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है. ओके, चलिए बेटे, अब ये वाला आपका पैसेज मैंने आपको समझा तो दिया है. आप लोगों का आज का होमवर्क ये है दैट यू विल कंप्लीट ऑल दीज आंसर्स. तीनों दो पैसेजेस के तो मैंने आपको मार्क करा दिए हैं, वो आप कंप्लीट करेंगे. एंड यू विल मार्क द आंसर्स ऑफ पैसेज नंबर 3 ऑल्सो. खुद से मार्क करें इसको, इसके आंसर्स को खुद से मार्क करें और इस पैसेज को आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे. दिस इज योर होमवर्क. आप लोगों ने ये तीनों पैसेजेस, कल जिस वक्त हमारी क्लास होगी तो ये तीनों पैसेजेस आपके पास कंप्लीट होने चाहिए. ठीक है, दैट इज इट. एंड आज की क्लास के लिए यहाँ तक ही. इंशाल्लाह कल हम अपने काम को और आगे लेके चलेंगे. और जिन लोगों ने अपना वो होमवर्क पैक यहाँ से नहीं लिया है, प्लीज टेक इट फ्रॉम स्कूल. एंड बिकॉज साथ साथ आप काम करेंगे तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.